Ready? Okay. Namaskar, good afternoon. As you can imagine, today is the anniversary of 1 year of Prime Minister Modi's third government, and it is important for us to assess how this government has fared both in the last 1 year and overall in the last 11 years as well. Some of you would know that I, prior to becoming a Member of Parliament, was a professor at IIM Bangalore. One of the things that professors are good at is assessing the performance of typically students, but also of governments. And what we have done, as I'm also chair of the AICC Research Department, and we have looked at the promises that have continuously been made by Modi Sarkar, and of course the document that they just released, which I have here a small version of this, the 11 Saal Seva Sushaasan Garib Kalyan ke 11 Saal. So Viksit Bharat ka Amrit Kal, the usual slogans and dialogues. Anyway, good afternoon. I'm Professor Rajiv Gowda, Chair, AICC Research Department. I'm joined by Advocate Mahima Singh. I will be speaking to you in English, and we will be releasing 2 sets of documents with tremendous amount of detail for you. In order that we do not repeat each other, I will cover some of the highlights in English, and Mahima ji will cover some of the highlights in Hindi, but we will not repeat the same points. There are lots and lots of points to cover. Anyway, the first point that we want to make is that we have 2 sets of documents for you. This document, Ek Aur Baar Jumla Sarkar, basically looks at the promises that were made in the 2024 manifesto of the BJP, plus other kinds of promises and statements that they've been making over time. And this document, 11 Saal Jhute Vikas Ke Waade, is a detailed expose of the hollow promises, of the hollow track record, of the false statements that are highlighted in the BJP's report card that was just released. So what are we talking about? Well, if you take a look at this 11 Saal document of the BJP, one of the first themes that they highlight is about taking care of the poor and the marginalized. They are very happy that 81 crore people are getting free fruit grains under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. We are also happy that those who are otherwise deprived of food are getting some relief. But the basic point of hunger is a much larger crisis in India. And this crisis puts us at 105 out of 127 countries in the World Hunger Index. Now, what is the implication? Well, look at what this does to the children of India. Malnutrition is affecting our children in a very horrible way, crippling their growth and their future possibilities. Stunting, which is low height for their age, is at 35.5%. Wasting, which is low weight for height, is at 19.3%, and underweight is at 32.1%. That is, nearly a third of Indian children are suffering from malnutrition in this day and age when they talk about Viksit Bharat. Let us remind the Prime Minister that he has a duty to our children and their futures. They make another claim that they have created 4 times the Ekalavya residential schools since 2014. They've announced 700 plus schools, out of which 300 are still non-functional. Is it rocket science to set up and run a school? Especially when you are crowing about what you are doing for underprivileged communities and our tribals and Adivasis. Now, in terms of defense, one of the claims is that over 5,000 items have been added to the indigenization list. Well, sadly,
40% of the items listed for indigenization have not been indigenized as of now. India remains one of the top importers of defense rather than a producer and an exporter. If you look at mission mode DRDO projects, 23 out of 55 have been delayed. And the share of R&D, today you're seeing that there is a lot of production that comes after R&D. What is the share of R&D in our defense budget? It's only 5.45%. Another claim that is constantly made. I'm also an economist, so I can tell you a little bit about this. One of the claims that is made is that we're the fastest growing large economy. Yes, that is true, but what rate are we growing? Are we able to encash a demographic dividend? Any economist will tell you that if we grow below 8.5% a year, we are sacrificing the future of crores and crores of our youngsters because we will not have enough growth and jobs and opportunities that are required to just provide the jobs that the great Jumla, 2 crore jobs per year would be to fulfill that. And our growth is 6.5% over the last year. This is the lowest rate after the COVID period. So what is happening? What is happening in this 11th year of your Sarkar, Prime Minister Modi? And what is happening is reflected in the response of the private sector. Is the Indian private sector investing in India? If you look at investment figures, after you gave them that bonanza tax cut, nothing changed. They still do not have confidence in your management of the economy to invest, to put their paisa, their rupees, where they should be putting it in India. Capital investment, fixed capital formation has come down to 32.4%, which is a 11-year low, that is in financial year 24. And remember this, there is another legacy of Modi Sarkar, which is on the economic front, glaring and worsening inequality. What is the share of the wealth of India, which is in the hands of the top 1%? 40% of India's wealth is captured by the top 1% of Indians, and the bottom 50% of Indians have to make do over with what? Just a little more than 3%. This is not the sort of economy we want, and until you fix this, you're not going to unleash the raw economic power that India inherently has. Another claim is about the PLI scheme. What has been the performance of the PLI scheme? In the promise is 1.9 lakh but you need people to teach in them. IITs, IIMs, NITs have 56% of central government. Universities, 5,000 teaching posts are vacant as of now, November 2024. 35% of faculty posts at AIMS Delhi, and new AIMS have 40+% faculty vacancies. So if you don't have teachers, what is the use of what you're doing? You need to wake up. Then, of course, another great claim is about the Udaan scheme, the ease of living for middle class India for tier 2, tier 3 cities.
what is the reality of Udan. More than 50% of approved routes never took off by 2023. Of the 619 routes under the Udan scheme, only 323 are operational. Out of the 4,500 crores spent, Udan is still struggling to fly. One last point I want to make, a point very, very dear to all our hearts, is about our environment, about sustainability, about preparing for climate change. The claim is that Ek Ped Maa Ke Naam, 142 plus crore trees have been planted. The sad reality is that India has seen the highest tree cover loss under the BJP government. In 2017, 1.89 lakh hectares, the highest, took place under this government. 1.75 lakh hectares in 2016, 1.44 lakh hectares in 2023, the worst in the last 6 years. The 5 northeastern states were responsible for 60% of India's total tree cover loss in the last 2 decades. And one of the things that this government is very good at, diverting forest land for non-forest uses, especially for mining projects of their own cronies. 1.73 lakh hectares of forest land between 2014 to 2024 have been diverted for infrastructure projects. What I have given you are just the highlights. In the detailed projects, in these detailed reports, you will, in this report on Jumla Sarkar, Promises versus Reality, we have the headlines, some of which are broader than what is there in this document, which is a counter to the highlights of this document. In this rebuttal, like the research department always does, we have also provided footnotes on where we've got this data. So you can cross-verify, you can do your own fact checks, but the truth is something that we request you to put out there, because otherwise, the one thing this government has been good at is propaganda and fake news. They are number one in that. It is our job as a responsible opposition to make sure that the people of India know the grim reality. Over to you, Mahimaji. शुक्रिया आप सभी को। उन दो प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार बनाए हुए पिछले साल आज ही के दिन, आज ही की शाम, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, या पिछले 11 साल के जो में ये भी कहा जा सकता है कि उनकी ताजपोशी हो रही थी, उस समय कश्मीर के रियासी के हमारे श्रद्धालु बहन आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देकर के अपनी बात शुरू करूंगी। तो आज हमने देखा कि कल से भाजपा में बड़ा जश्न का माहौल है। इन श्रद्धालुओं को, इन सह भारतीयों तो नहीं सुनाई देती, लेकिन एक 150 का जरूर सामने आई है, जिसमें 11 साल का लेखा जोखा। भाजपा का ट्विटर हैंडल उठा करके देखें, के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। नारी के ऊपर इस तरह से आ रहा है जैसे वो तो लागू ही हो चुका, आरक्षण मिल चुका है महिला। सत्य ये है कि करने की बात है और बाद होना है जनगणना, जातीय जनगणना के ऊपर अभी हमने देखा ही है। लेकिन सवाल ये खड़ा 2001 जनगणना को टालने के लिए कोविड का, तब उसके बाद G20 भी कराया गया देश में, बड़े चुनाव भी हो गया, लेकिन जनगणना नाम भी। आज जेपी नड्डा जी ने नैरेटिव है जिसके दम पर भाजपा पिछले 11 साल आई है। डॉक्टर
डॉक्टर गौड़ा ने आप सभी को दिखाए कि इस पन्नों के अंदर आपको तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे आदम गोंडवी जी की बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं। उनकी वो गांव का मौसम गुलाबी है, में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा किताबी है। तो ये मोदी सरकार के 11 साल नहीं कि ये तो नो डेट 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने हम इस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं, धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, और न नियत है न ये भारत मिस्ड कॉल वाले विस्तार के साल भी हैं। और अगर आज आप किसी गरीब पिछड़े से पूछेंगे, वो कहेंगे सच कहें तो बेकार के 11 साल हैं। तो इसलिए ये जो 150 पन्नों का आपके सामने बखान पेश किया है भाजपा ने, इन 150 पन्नों के बखान के सत्य को आपके सामने बहुत विस्तृत तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गौड़ा ने रखा। चेयरपर्सन है रिसर्च डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के द्वारा सामने लाए गए कुछ और तथ्यों को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मगर उससे पहले इतना जान लें कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुल मिलाकर के 906 स्कीमों को देश के सामने घोषित किया। पिछले 11 साल के जो बजट सत्र हुए, 906 स्कीमें आपके सामने लाई गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 906 स्कीमों में से 71% स्कीमें इसलिए 71% 71% स्कीमें इसलिए फेल हो गईं क्योंकि वो अंडर फंडेड रही, क्योंकि जो बजट आवंटित किया गया उसके मुकाबले जो बजट इस्तेमाल किया गया उसमें बहुत बड़ा गैप था। और ज्यादातर जो बजट था, जैसा आपको डॉक्टर गौड़ा ने डिफेंस बजट के बारे में भी एक जिक्र यहां पर किया, वो वापस किया गया, वो अनयूज्ड, उसको बिना इस्तेमाल किए उसको वापस दे दिया गया। यानी कि जुमला सरकार का सत्य, पहला सत्य ये कि एक तरफ घोषणा करते हैं और अपनी ही घोषणाओं को रीपैकेज करके पेश करते रहते हैं, कांग्रेस सरकार की ही नहीं, अपनी ही घोषणाओं को भी हर साल नए रूप में ले आते हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इसी बात को आगे लेकर जाते हुए और आपको कुछ और आंकड़े बताते हुए, उन्हीं की पुस्तिका से हमने जो टाइटल्स उठाए हैं, सबसे पहला तो देखिए उन्होंने कहा कि किसानों को सुनिश्चित किया है मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में। उनका दावा है, भाजपा का, जेपी नड्डा जी का, मोदी जी का दावा है, पीएम किसान लाभार्थियों को उन्होंने 3.25 लाख 3.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किए। अब इसकी हकीकत क्या है वो जरा जान लीजिए। और जैसा आपको बताया गया है बुकलेट के अंदर रिसोर्सेज भी हैं जहां से हमने ये मटेरियल, ये तथ्य ये आपके सामने रखे हैं। अप्रैल 2022 से नवंबर 2023 के बीच 2.25 करोड़ लाभार्थी लिस्ट से हटा दिए गए, उनके नाम मिटा दिए गए, जैसा इस सरकार का ट्रेडमार्क है कि लिस्ट बनाते हैं, लाभार्थी दिखाने के लिए बनाते हैं और उसके बाद उनको मिटा देते हैं। उसके बाद आकर के दावा किया कि पहले 100 दिन की जो पुस्तिका निकाली थी, पहले 100 दिन में मोदी सरकार ने कहा हमने 25 लाख नए किसानों को शामिल किया है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मात्र 13 लाख किसानों को दोबारा से शामिल किया गया, जबकि हटाए गए थे कितने, 2.25 करोड़। और इसी तरीके से जो पीएम किसान योजना, जो जिसके ऊपर बहुत दंभ भरती है ये सरकार, उसका एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि जो किराएदार किसान हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि जब कृषि कानून लाए गए थे उसमें एक बड़ा बिंदु था जिस पर बहस छिड़ी हुई थी, उसमें जो किराएदार किसान हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो इसमें लाभार्थी नहीं है, उन तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। और आज के आंकड़े तो जनगणना के हमारे पास है नहीं, इसलिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 14.43 करोड़ किसान जो हैं वो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से। मैंने किराएदार किसानों की बात की, इसे अंग्रेजी में टेनेंट फार्मर के टर्म से जाना जाता है।
तो इस तरह से आप देखें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, और इसकी जनगणना और जरूरी हो जाती है ताकि पता चले आज आखिर ऐसे कितने किसान हैं जो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। इसी प्रकार से नारी शक्ति के लिए नया जोश का बहुत बड़ा एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश किया गया, रंगीन पन्नों में परोस करके, जिसकी सच्चाई मैंने आधी तो आपको बता दी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या वो पीएम मातृत्व वंदना योजना हो, ये जितनी योजनाएं हैं इनका यदि आप सत्य पता करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डेटा ये पेश कर रहे हैं आपके सामने वो कितना झूठा है। सबसे पहली बात, उन्होंने आपसे कहा, दावा किया देश से कि भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। जो सेक्स रेशो है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कहा कि 1000 पर 1020 महिलाएं हो गई। अब जनगणना तो हुई नहीं, एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अंदर जो मेथडोलॉजी रखी गई वो कुछ इस प्रकार से रखी गई कि उसमें जो सवाल पूछे गए, जिस तरह से पूछे गए, मसलन आपसे आपके घर आकर पूछा गया कि पिछली रात आपके घर में कितने पुरुष और महिलाएं थीं। अब भाई पिछली रात मेरे घर के जो पुरुष हैं हो सकता है व्यापार के लिए बाहर गए हों, या हो सकता है कि मेरे घर के जो पुरुष हैं वो किसान हों और खेत में पानी लगाने गए हों, तो मेरे घर में तो वो नहीं थे। तो उस हिसाब से मेथडोलॉजी को जो है छेड़छाड़ करके 1000 पर 1020 का आपके सामने आंकड़ा पेश किया, जिसके ऊपर विशेषज्ञों के आज सवालिया चिन्ह लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उसके आंकड़े दोगुने हो गए हैं। अब भाजपा के सर्वे का डाटा जो है उसकी तो हमें क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि एनसीआरबी जो है वो डेटा हमारे सामने लेकर आता है, वो अपराध के ऊपर एक रिकॉर्ड रखता है। उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि 2012 में जो लगभग 2.5 लाख मामले दर्ज हुआ करते थे महिलाओं पर अपराध के, वो 2022-23 में बढ़कर के लगभग 4.5 लाख हो चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर मोदी सरकार को जरूर उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सत्य ये है। पीएम मातृत्व योजना का मैंने आपके सामने जिक्र किया। 2013-14 में इस योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, एक स्वरूप इसका ये था, जिसको बाद में बदल के आपके सामने लाया गया। और आज दावा किया है भाजपा सरकार ने कि पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अब इसका सत्य भी इस पुस्तिका में आप देखेंगे कि आपके सामने बड़े विस्तृत तौर पर दिया गया है, लेकिन मैं एक छोटे से बिंदु में संक्षेप में आपसे अगर कहना चाहूं तो वर्तमान में महिलाओं को केवल 5,000 रुपए की सहायता मिल रही है इस योजना के तहत। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसे कांग्रेस पार्टी 2013 में लाई थी, उसके बलबूते पर हम 6,000 की सहायता प्रदान करते थे, आज उसे घटा करके 5,000 कर दिया है। और ये जो लाभ है आज की योजना के मुताबिक सिर्फ पहली संतान तक ही स्त्री को मिलता है, यानी कि उसके बाद जो महिला के पोषण संबंधी जो ज़रूरतें हैं और आर्थिक कमजोरियों के चलते जो उनकी अनदेखी होती है, वो अनदेखी बरकरार है। और इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसा पहले मैंने आपसे बताया, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और करते हुए वो इस तरह से उसको घुमा फिरा करके जो मिल रहा है वो कुछ और, आपको बताया जा रहा है वो कुछ और है। इसके बाद एक बहुत बड़ा दावा जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहे हैं, और शुरुआत से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, बहुत सारी इंडिया इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। आज ये जो स्टार्टअप इंडिया की मैं विशेष तौर पर बात करूं, क्योंकि व्यवसाय में आसानी की बात ये सरकार करती है। एमएसएमईज पर इनके पास कोई डेटा नहीं है, आप पूछने जाएंगे तो एमएसएमईज बंद कितनी हो गई, खुल कितनी गई, कोई डेटा नहीं है। लेकिन एक डेटा जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये जरूर है कि जहां मोदी सरकार दावा कर रही है कि 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जो 2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाती हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके मुकाबले जो सत्य है, जो आंकड़ा है, वो कहता है कि मात्र 2024 के अंदर 12,717 स्टार्टअप बंद हुए हैं। यानी अगर इस स्टार्टअप इंडिया को शट डाउन इंडिया कह दिया जाए तो इसमें कोई भूल नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। 2021 में जहां इन प्रोजेक्ट्स के लिए $38 बिलियन की फंडिंग
उपलब्ध थी वो 2024 में घट करके आधी से भी कम 14.4 बिलियन डॉलर के करीब रह चुकी है। और यहां तक कि 2025 के पहले 4 महीने में ही 259 स्टार्टअप्स पहले ही लगभग तबाह हो चुके हैं। तो इसलिए ये तो रही बात व्यवसाय की, महिलाओं की, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम देने की ओर बढ़ूं, इस देश का एक बहुत अहम हिस्सा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारे देश का, उसके लिए दावा करती है मोदी सरकार कि 2014 की तुलना में 2024 में इस क्षेत्र में विद्रोह गतिविधियां 24% कम हो गई हैं। अब बताइए इस पर कौन विश्वास करेगा। मणिपुर जो 2 साल से जल रहा है, मणिपुर जहां विस्थापन, हजारों लोगों का जो विस्थापन हुआ है, वो दक्षिण एशिया के कुल विस्थापन का 97% आज बन चुका है। जहां अभी कल परसों में ताजी हिंसा हुई है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जहां के विधायकों ने तमाम कोशिशें की प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट नहीं दिया उन्हें। उस मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करने का दावा करते हैं, वहां विकास करने का दावा करते हैं। और ये दावा, जैसा मैंने अदम गोंडवी जी के अंदाज में कहा था, ये दावा बिल्कुल किताबी है। रंग बेशक आप उस पर गुलाबी लगा दें, पर दावा किताबी है। और अंततः विरासत और विकास का एक बड़ा जुमला फेंका है इस पुस्तिका के अंदर। उसमें से भी मैंने जो एक बिंदु उठाना उचित समझा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में जो विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का, उस पर दावा करती है मोदी सरकार की संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन को केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बढ़ाता है उनका ये संशोधन, वो ऐसा कह रहे हैं। अब जहां हमारे प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में मुगल मंगल सूत्र, ज्यादा औलादों वाले लोग, इस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं, वहां उनकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा भला। और इसमें और तमाम जो तथ्य हैं, वक्फ बाय यूजर के ऊपर सवाल था, क्यों वक्फ के अंदर जो है दूसरे धर्मों के लोगों को लाने की बात हो रही है, जब दूसरे धर्मों के बोर्ड्स के अंदर जो है हम इस्लाम के लोगों को शामिल नहीं करते। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो खड़े थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना जजमेंट रिजर्व किया हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा न जाते हुए उनके दावे का खंडन ज़रूर हम कर देना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम दे के आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करूं, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि ये जो लिखा है सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों बातें वो व्यक्ति जो अपना सीना ठोक करके संसद में कहता हो एक अकेला सब पे भारी, वो व्यक्ति जिनकी देख रेख के अंदर 18 महीने में 4 बार आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो और वो आतंकवादी आज भी खुले घूम रहे हों, वो व्यक्ति जो अमेरिका में बैठे हुए थे और उनकी देखरेख में वहां पर बैठे हुए वो राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं, और यहां अमेरिकी सेना के विमान पर विमान उतर रहे हैं और 600 से ज्यादा भारतीयों को वहां से यहां पर वापस अपमानित करके, बेड़ियां बांध करके, गौ मांस खिला करके, बीफ खिला करके उनको हमारे देश में अपमानित करके उतारा गया। एक ऐसे व्यक्ति जो गरीब के कल्याण की बात तो कर रहे हैं, मगर जब नमस्ते ट्रंप किया तो गुजरात में ऊंची सी दीवार बना दी गरीब इलाकों के पास में। जब G20 किया तो दिल्ली में हरे पर्दे लगा दिए उन इलाकों में जहां पर गरीबों का इलाका है। ये सेवा की बात कर रहे हैं, ना इनमें समर्पण का भाव है, ना इनमें लोगों से संवाद करने की इच्छा शक्ति है। ये सुशासन की बात कर रहे हैं जिसके लिए समभाव और शिष्टाचार आवश्यक है। तो इसलिए एक अकेला सब पे भारी के ये जो 11 वर्ष हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष यू टर्न लेकर के सर्वसम्मति में नया पैकेज करके हम सबके सामने पेश करने की जो है एक असफल कोशिश की, मैं कहूंगी, क्योंकि देश का विश्वास उठता जा रहा है, उनसे हम अंततः ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज भी भारत की 140 करोड़ जनता यही विश्वास करती है कि सत्यमेव जयते और डरो मत। जय हिंद। अब आप अपने प्रश्न पूछिए।
सरकार जहां 11 साल पूरे होने पर दावा करे कि हमने 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है, वही आंकड़े कहते हैं कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को वो मुफ्त राशन देते हैं। तो सरकार के दावे और आंकड़े में ये गफलत क्यों? हमने तो आपको अभी तमाम आंकड़ों के साथ बता दिया और ये विस्तृत आपके सामने जो है पुस्तिकाएं भी रखती हैं, आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी, आप इसमें ज़रूर देखिएगा। ये तो आपने अपने सवाल में उत्तर भी दे दिया हमें कि एक तरफ तो वो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं 25 करोड़ से ज़्यादा को बाहर निकाल दिया। तो इनका सच कितना आधा है और इनका झूठ कितना पूरा है वो तो सबके सामने है, सर्वविदित है। Thank you. Yeah. Ready? Okay. Namaskar, good afternoon. As you can imagine, today is the anniversary of 1 year of Prime Minister Modi's third government, and it is important for us to assess how this government has fared both in the last 1 year and overall in the last 11 years as well. Some of you would know that I, prior to becoming a member of parliament, was a professor at IIM Bangalore. One of the things that professors are good at is assessing the performance of typically students, but also of governments. And what we have done, as I'm also chair of the AICC Research Department, and we have looked at the promises that have continuously been made by Modi Sarkar, and of course the document that they just released, which I have here a small version of this, the 11 Saal Seva Sushasan Garib Kalyan ke 11 Saal. So Viksit Bharat ka Amrit Kal, the usual slogans and dialogues. Anyway, good afternoon. I'm Professor Rajiv Gowda, Chair, AICC Research Department. I'm joined by Advocate Mahima Singh. I will be speaking to you in English, and we will be releasing 2 sets of documents with tremendous amount of detail for you. In order that we do not repeat each other, I will cover some of the highlights in English, and Mahima ji will cover some of the highlights in Hindi, but we will not repeat the same points. There are lots and lots of points to cover. Anyway, the first point that we want to make is that we have 2 sets of documents for you. This document, Ek Aur Baar Jumla Sarkar, basically looks at the promises that were made in the 2024 manifesto of the BJP, plus other kinds of promises and statements that they've been making over time. And this document, 11 Saal Jhute Vikas Ke Waade, is a detailed expose of the hollow promises, of the hollow track record, of the false statements that are highlighted in the BJP's report card that was just released. So what are we talking about? Well, if you take a look at this 11 Saal document of the BJP, one of the first themes that they highlight is about taking care of the poor and the marginalized. They are very happy that 81 crore people are getting free fruit grains under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. We are also happy that those who are otherwise deprived of food are getting some relief. But the basic point of hunger is a much larger crisis in India. And this crisis puts us at 105 out of 127 countries in the World Hunger Index. Now, what is the implication? Well, look at what this does to the children of India. Malnutrition is affecting our children in a very horrible way, crippling their growth and their future possibilities. Stunting, which is low height for their age, is at 35.5%. Wasting, which is low weight for height, is at 19.3%, and underweight is at 32.1%. That is, nearly a third of Indian children are suffering from
malnutrition in this day and age when they talk about Viksit Bharat. Let us remind the Prime Minister that he has a duty to our children and their futures. They make another claim that they have created 4 times the Ekalavya residential schools since 2014. They've announced 700 plus schools, out of which 300 are still non-functional. Is it rocket science to set up and run a school? Especially when you are crowing about what you are doing for underprivileged communities and our tribals and Adivasis. Now, in terms of defense, one of the claims is that over 5,000 items have been added to the indigenization list. Well, sadly, 40% of the items listed for indigenization have not been indigenized as of now. India remains one of the top importers of defense rather than a producer and an exporter. If you look at mission mode DRDO projects, 23 out of 55 have been delayed. And the share of R&D, today you're seeing that there is a lot of production that comes after R&D. What is the share of R&D in our defense budget? It's only 5.45%. Another claim that is constantly made. I'm also an economist, so I can tell you a little bit about this. One of the claims that is made is that we're the fastest growing large economy. Yes, that is true. But what rate are we growing? Are we able to encash a demographic dividend? Any economist will tell you that if we grow below 8.5% a year, we are sacrificing the future of crores and crores of our youngsters because we will not have enough growth and jobs and opportunities that are required to just provide the jobs that the great Jumla, 2 crore jobs per year, would be to fulfill that. And our growth is 6.5% over the last year. This is the lowest rate after the COVID period. So what is happening? What is happening in this 11th year of your Sarkar, Prime Minister Modi? And what is happening is reflected in the response of the private sector. Is the Indian private sector investing in India? If you look at investment figures, after you gave them that bonanza tax cut, nothing changed. They still do not have confidence in your management of the economy to invest, to put their paisa, their rupees where they should be putting it in India. Capital investment, fixed capital formation has come down to 32.4%, which is a 11-year low, that is in financial year 24. And remember this, there is another legacy of Modi Sarkar, which is on the economic front, glaring and worsening inequality. What is the share of the wealth of India which is in the hands of the top 1%? 40% of India's wealth is captured by the top 1% of Indians, and the bottom 50% of Indians have to make do over with what? Just a little more than 3%. This is not the sort of economy we want, and until you fix this, you're not going to unleash the raw economic power that India inherently has. Another claim is about the PLI scheme. What has been the performance of the PLI scheme? In the promise is 1.9 lakh
but you need people to teach in them. IITs, IIMs, NITs have 56% of central government. Universities, 5,000 teaching posts are vacant as of now, November 2024. 35% of faculty posts at AIMS Delhi, and new AIMS have 40+% faculty vacancies. So if you don't have teachers, what is the use of what you're doing? You need to wake up. Then, of course, another great claim is about the UDAN scheme, the ease of living for middle-class India for Tier 2, Tier 3 cities. What is the reality of UDAN? More than 50% of approved routes never took off by 2023. Of the 619 routes under the UDAN scheme, only 323 are operational. Out of the 4,500 crores spent, UDAN is still struggling to fly. One last point I want to make, a point very, very dear to all our hearts, is about our environment, about sustainability, about preparing for climate change. The claim is that Ek Ped Maa Ke Naam, 142 plus crore trees have been planted. The sad reality is that India has seen the highest tree cover loss under the BJP government. In 2017, 1.89 lakh hectares, the highest, took place under this government. 1.75 lakh hectares in 2016, 1.44 lakh hectares in 2023, the worst in the last 6 years. The 5 northeastern states were responsible for 60% of India's total tree cover loss in the last 2 decades. And one of the things that this government is very good at, diverting forest land for non-forest uses, especially for mining projects of their own cronies. 1.73 lakh hectares of forest land between 2014 to 2024 have been diverted for infrastructure projects. What I have given you are just the highlights. In the detailed projects, in these detailed reports, you will, in this report on Jumla Sarkar, Promises versus Reality, we have the headlines, some of which are broader than what is there in this document, which is a counter to the highlights of this document. In this rebuttal, like the research department always does, we have also provided footnotes on where we've got this data, so you can cross-verify, you can do your own fact checks, but the truth is something that we request you to put out there, because otherwise, the one thing this government has been good at is propaganda and fake news. They are number one in that. It is our job as a responsible opposition to make sure that the people of India know the grim reality. Over to you, Mahimaji. शुक्रिया आप सभी को। उन दो प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार बनाए हुए पिछले साल आज ही के दिन, आज ही की शाम, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, या पिछले 11 साल के जो में ये भी कहा जा सकता है कि उनकी ताजपोशी हो रही थी, उस समय कश्मीर के रियासी के हमारे श्रद्धालु बहन आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देकर के अपनी बात शुरू करूंगी। तो आज हमने देखा कि कल से भाजपा में बड़ा जश्न का माहौल है। इन श्रद्धालुओं को, इन सह भारतीयों तो नहीं सुनाई देती, लेकिन एक 150 का जरूर सामने आई है, जिसमें 11 साल का लेखा जोखा। भाजपा का ट्विटर हैंडल उठा करके देखें, के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, नारी के ऊपर इस तरह से आ रहा है जैसे वो तो लागू ही हो चुका, आरक्षण मिल चुका है महिला। सत्य ये है कि
करने की बात है और बाद होना है जनगणना, जातीय जनगणना के ऊपर अभी हमने देखा ही है, लेकिन सवाल ये खड़ा 2021 जनगणना को टालने के लिए कोविड का, तब उसके बाद G20 भी कराया गया देश में, बड़े चुनाव भी हो गया, लेकिन जनगणना नाम भी आज जेपी नड्डा जी ने बात का नैरेटिव है जिसके दम पर भाजपा पिछले 11 साल आई है। तो डॉक्टर गौड़ा ने आप सभी को दिखाया कि इस पन्नों के अंदर आपको तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे आदम गोंडवी जी की बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं। उनकी वो गांव का मौसम गुलाबी है, में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा किताबी कहें तो ये मोदी सरकार के 11 साल नहीं कि ये तो नो डेट 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने हम इस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं, धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, और न नियत है न ये भारत मिस्ड कॉल वाले विस्तार के साल भी हैं। और अगर आज आप किसी गरीब पिछड़े से पूछेंगे, वो कहेंगे सच कहें तो बेकार के 11 साल हैं। तो इसलिए ये जो 150 पन्नों का आपके सामने बखान पेश किया है भाजपा ने, इन 150 पन्नों के बखान के सत्य को आपके सामने बहुत विस्तृत तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गौड़ा ने रखा। चेयरपर्सन है रिसर्च डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के द्वारा सामने लाए गए कुछ और तथ्यों को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मगर उससे पहले इतना जान लें कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुल मिलाकर के 906 स्कीमों को देश के सामने घोषित किया। पिछले 11 साल के जो बजट सत्र हुए, 906 स्कीमें आपके सामने लाई गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 906 स्कीमों में से 71% स्कीमें इसलिए 71% 71% स्कीमें इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो अंडर फंडेड रही, क्योंकि जो बजट आवंटित किया गया उसके मुकाबले जो बजट इस्तेमाल किया गया उसमें बहुत बड़ा गैप था। और ज्यादातर जो बजट था, जैसा आपको डॉक्टर गौड़ा ने डिफेंस बजट के बारे में भी एक जिक्र यहां पर किया, वो वापस किया गया, वो अनयूज्ड, उसको बिना इस्तेमाल किए उसको वापस दे दिया गया। यानी कि जुमला सरकार का सत्य, पहला सत्य ये कि एक तरफ घोषणा करते हैं और अपनी ही घोषणाओं को रीपैकेज करके पेश करते रहते हैं, कांग्रेस सरकार की ही नहीं, अपनी ही घोषणाओं को भी हर साल नए रूप में ले आते हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इसी बात को आगे लेकर जाते हुए और आपको कुछ और आंकड़े बताते हुए, उन्हीं की पुस्तिका से हमने जो टाइटल्स उठाए हैं, सबसे पहला तो देखिए उन्होंने कहा कि किसानों को सुनिश्चित किया है मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में। उनका दावा है, भाजपा का, जेपी नड्डा जी का, मोदी जी का दावा है, पीएम किसान लाभार्थियों को उन्होंने 3.25 लाख 3.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किए। अब इसकी हकीकत क्या है वो जरा जान लीजिए। और जैसा आपको बताया गया है बुकलेट के अंदर रिसोर्सेज भी हैं जहां से हमने ये मटेरियल, ये तथ्य ये आपके सामने रखे हैं। अप्रैल 2022 से नवंबर 2023 के बीच 2.25 करोड़ लाभार्थी लिस्ट से हटा दिए गए, उनके नाम मिटा दिए गए, जैसा इस सरकार का ट्रेडमार्क है कि लिस्ट बनाते हैं, लाभार्थी दिखाने के लिए बनाते हैं और उसके बाद उनको मिटा देते हैं। उसके बाद आकर के दावा किया कि पहले 100 दिन की जो पुस्तिका निकाली थी, पहले 100 दिन में मोदी सरकार ने कहा हमने 25 लाख नए किसानों को शामिल किया है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मात्र 13 लाख किसानों को दोबारा से शामिल किया गया, जबकि हटाए गए थे कितने, 2.25 करोड़। और इसी तरीके से जो पीएम किसान योजना, जो जिसके ऊपर बहुत दंभ भरती है ये सरकार,
उसका एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि जो किराएदार किसान हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि जब कृषि कानून लाए गए थे उसमें एक बड़ा बिंदु था जिस पर बहस छिड़ी हुई थी, उसमें जो किराएदार किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो इसमें लाभार्थी नहीं है, उन तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। और आज के आंकड़े तो जनगणना के हमारे पास है नहीं, इसलिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 14.43 करोड़ किसान जो हैं वो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से। मैंने किराएदार किसानों की बात की, इसे अंग्रेजी में टेनेंट फार्मर के टर्म से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देखें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, और इसलिए जनगणना और जरूरी हो जाती है ताकि पता चले आज आखिर ऐसे कितने किसान हैं जो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। इसी प्रकार से नारी शक्ति के लिए नया जोश का बहुत बड़ा एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश किया गया, रंगीन पन्नों में परोस करके, जिसकी सच्चाई मैंने आधी तो आपको बता दी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या वो पीएम मातृत्व वंदना योजना हो, ये जितनी योजनाएं हैं इनका यदि आप सत्य पता करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डेटा ये पेश कर रहे हैं आपके सामने वो कितना झूठा है। सबसे पहली बात, उन्होंने आपसे कहा, दावा किया देश से कि भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। जो सेक्स रेशो है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कहा कि 1000 पर 1020 महिलाएं हो गई। अब जनगणना तो हुई नहीं, एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अंदर जो मेथडोलॉजी रखी गई वो कुछ इस प्रकार से रखी गई कि उसमें जो सवाल पूछे गए, जिस तरह से पूछे गए, मसलन आपसे आपके घर आकर पूछा गया कि पिछली रात आपके घर में कितने पुरुष और महिलाएं थीं। अब भाई पिछली रात मेरे घर के जो पुरुष हैं हो सकता है व्यापार के लिए बाहर गए हों, या हो सकता है कि मेरे घर के जो पुरुष हैं वो किसान हों और खेत में पानी लगाने गए हों, तो मेरे घर में तो वो नहीं थे। तो उस हिसाब से मेथोडोलॉजी को जो है छेड़छाड़ करके 1000 पर 1020 का आपके सामने आंकड़ा पेश किया, जिसके ऊपर विशेषज्ञों के आज सवालिया चिन्ह लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उसके आंकड़े दोगुने हो गए हैं। अब भाजपा के सर्वे का डाटा जो है उसकी तो हमें क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एनसीआरबी जो है वो डेटा हमारे सामने लेकर आता है, वो अपराध के ऊपर एक रिकॉर्ड रखता है। उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि 2012 में जो लगभग 2.5 लाख मामले दर्ज हुआ करते थे महिलाओं पर अपराध के, वो 2022-23 में बढ़कर के लगभग 4.5 लाख हो चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर मोदी सरकार को जरूर उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सत्य ये है। पीएम मातृत्व योजना का मैंने आपके सामने जिक्र किया। 2013-14 में इस योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, एक स्वरूप इसका ये था, जिसको बाद में बदल के आपके सामने लाया गया। और आज दावा किया है भाजपा सरकार ने कि पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अब इसका सत्य भी इस पुस्तिका में आप देखेंगे कि आपके सामने बड़े विस्तृत तौर पर दिया गया है, लेकिन मैं एक छोटे से बिंदु में संक्षेप में आपसे अगर कहना चाहूं तो वर्तमान में महिलाओं को केवल 5,000 रुपए की सहायता मिल रही है। इस योजना के तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे कांग्रेस पार्टी 2013 में लाई थी, उसके बलबूते पर हम 6,000 की सहायता प्रदान करते थे, आज उसे घटा करके 5,000 कर दिया है। और ये जो लाभ है आज की योजना के मुताबिक सिर्फ पहली संतान तक ही स्त्री को मिलता है, यानी कि उसके बाद जो महिला के पोषण संबंधी जो ज़रूरतें हैं और आर्थिक कमजोरियों के चलते जो उनकी अनदेखी होती है, वो अनदेखी बरकरार है। और इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसा पहले मैंने आपसे बताया, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और करते हुए वो इस तरह से उसको घुमा फिरा करके जो मिल रहा है वो कुछ और, आपको बताया जा रहा है वो कुछ और है। इसके बाद एक बहुत बड़ा दावा जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहे हैं, और शुरुआत से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, बहुत सारी इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। आज ये जो स्टार्टअप इंडिया की मैं विशेष तौर पर बात करूं, क्योंकि व्यवसाय में
आसानी की बात ये सरकार करती है। एमएसएमईज पर इनके पास कोई डेटा नहीं है, आप पूछने जाएंगे तो एमएसएमईज बंद कितनी हो गई, खुल कितनी गई, कोई डेटा नहीं है। लेकिन एक डेटा जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये ज़रूर है कि जहां मोदी सरकार दावा कर रही है कि 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जो 2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाती हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके मुकाबले जो सत्य है, जो आंकड़ा है, वो कहता है कि मात्र 2024 के अंदर 12,717 स्टार्टअप बंद हुए हैं। यानी अगर इस स्टार्टअप इंडिया को शट डाउन इंडिया कह दिया जाए तो इसमें कोई भूल नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। 2021 में जहां इन प्रोजेक्ट्स के लिए $38 बिलियन की फंडिंग उपलब्ध थी, वो 2024 में घट करके आधी से भी कम $14.4 बिलियन के करीब रह चुकी है। और यहां तक कि 2025 के पहले 4 महीने में ही 259 स्टार्टअप्स पहले ही लगभग तबाह हो चुके हैं। तो इसलिए ये तो रही बात व्यवसाय की, महिलाओं की, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम देने की ओर बढ़ूं, इस देश का एक बहुत अहम हिस्सा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारे देश का, उसके लिए दावा करती है मोदी सरकार कि 2014 की तुलना में 2024 में इस क्षेत्र में विद्रोह गतिविधियां 24% कम हो गई हैं। अब बताइए इस पर कौन विश्वास करेगा। मणिपुर जो 2 साल से जल रहा है, मणिपुर जहां विस्थापन, हजारों लोगों का जो विस्थापन हुआ है, वो दक्षिण एशिया के कुल विस्थापन का 97% आज बन चुका है। जहां अभी कल परसों में ताजी हिंसा हुई है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जहां के विधायकों ने तमाम कोशिशें की प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट नहीं दिया उन्हें। उस मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करने का दावा करते हैं, वहाँ विकास करने का दावा करते हैं। और ये दावा, जैसा मैंने अदम गोंडवी जी के अंदाज में कहा था, ये दावा बिल्कुल किताबी है। रंग बेशक आप उस पर गुलाबी लगा दें, पर दावा किताबी है। और अंततः विरासत और विकास का एक बड़ा जुमला फेंका है इस पुस्तिका के अंदर। उसमें से भी मैंने जो एक बिंदु उठाना उचित समझा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में जो विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का, उस पर दावा करती है मोदी सरकार की संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन को केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बढ़ाता है उनका ये संशोधन, वो ऐसा कह रहे हैं। अब जहां हमारे प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में मुगल मंगलसूत्र, ज्यादा औलादों वाले लोग, इस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं, वहां उनकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा भला। और इसमें और तमाम जो तथ्य हैं, वक्फ बाय यूजर के ऊपर सवाल था, क्यों वक्फ के अंदर जो है दूसरे धर्मों के लोगों को लाने की बात हो रही है, जब दूसरे धर्मों के बोर्ड्स के अंदर जो है हम इस्लाम के लोगों को शामिल नहीं करते। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो खड़े थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना जजमेंट रिजर्व किया हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा न जाते हुए उनके दावे का खंडन ज़रूर हम कर देना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम दे के आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करूं, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि ये जो लिखा है सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों बातें वो व्यक्ति जो अपना सीना ठोक करके संसद में कहता हो एक अकेला सब पे भारी, वो व्यक्ति जिनकी देख रेख के अंदर 18 महीने में 4 बार आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो और वो आतंकवादी आज भी खुले घूम रहे हों, वो व्यक्ति जो अमेरिका में बैठे हुए थे और उनकी देखरेख में वहां पर बैठे हुए वो राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं और यहां अमेरिकी सेना के विमान पर विमान उतर रहे हैं और 600 से ज्यादा भारतीयों को वहां से यहां पर वापस अपमानित करके, बेड़ियां बांध करके, गौ मांस खिला करके, बीफ खिला करके उनको हमारे देश में अपमानित करके उतारा गया। एक ऐसे व्यक्ति जो गरीब के कल्याण की बात तो कर रहे हैं, मगर जब नमस्ते ट्रंप किया तो गुजरात में ऊंची सी दीवार बना दी गरीब इलाकों के पास में। जब G20 किया तो दिल्ली में हरे पर्दे लगा दिए उन इलाकों में जहां पर गरीबों का इलाका है। ये सेवा की बात कर रहे हैं, ना इनमें समर्पण का भाव है, ना इनमें लोगों से संवाद करने की इच्छा शक्ति है। ये सुशासन की बात कर रहे हैं जिसके लिए समभाव और शिष्टाचार आवश्यक है। तो इसलिए एक अकेला सब पे भारी के ये जो 11 वर्ष हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष
यू टर्न लेकर के सर्वसम्मति में नया पैकेज करके हम सबके सामने पेश करने की जो है एक असफल कोशिश की मैं कहूंगी, क्योंकि देश का विश्वास उठता जा रहा है। उनसे हम अंततः ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज भी भारत की 140 करोड़ जनता यही विश्वास करती है कि सत्यमेव जयते और डरो मत। जय हिंद। अब आप अपने प्रश्न पूछिए। सरकार जहां 11 साल पूरे होने पर दावा करे कि हमने 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है, वही आंकड़े कहते हैं कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को वो मुफ्त राशन देते हैं। तो सरकार के दावे और आंकड़े में ये गफलत क्यों? हमने तो आपको अभी तमाम आंकड़ों के साथ बता दिया और ये विस्तृत आपके सामने जो है पुस्तिकाएं भी रखती हैं, आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी, आप इसमें ज़रूर देखिएगा। ये तो आपने अपने सवाल में उत्तर भी दे दिया हमें कि एक तरफ तो वो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं 25 करोड़ से ज़्यादा को बाहर निकाल दिया। तो इनका सच कितना आधा है और इनका झूठ कितना पूरा है वो तो सबके सामने है, सर्वविदित है। Thank you.